Muralidharan said, BJP will play important part here. And therefore, we are all eager to hear Modi. Modi, 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 Narendra Modi, Narendra Modi. So I will be with you for the next 100 days, and I will be with you. BJP விருதுகளே, மலர்க மலர்க மலர்கவே, தமிழகத்தில் தாமரை ஆட்சி மலர்களே, பாரத் மாதா கி, பாரதிய ஜனதா கட்சி. மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் தமிழக அரசு இது உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பாரதிய ஜனதா கட்சியில் கப்பலோட்டிய தமிழனை பின்பற்றிய மக்கள் இதில் ஆராதிக்கக்கூடிய தலைவர் நரேந்திர மோடி அவர்கள். ஏனென்றால் தமிழகம் எந்தெந்த தலைவர்களை ஆராதித்ததோ அந்த தலைவர்களின் மொத்த ஊழல் நான் ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன். எங்கள் தொண்டர்கள் ஒரு மைதானத்திற்கு வருவதற்கு சோதனைகள் வேறு கட்சிக்கு கிடையாது. சோதனை மேல் சோதனையை சந்தித்து விட்டுத்தான் எங்களது பாரதிய ஜனதாவை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேறு கட்சிக்கு இந்த சோதனை கிடையாது. வேறு கட்சிக்காக இருந்தால் பரவாயில்லை, ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டனுக்கு நேர்வழி எங்கள் தொண்டர்கள் உள்ளே வர வேண்டும் வந்திருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் பத்திரிகை சகோதரர்களையும் அரசியல் நோக்கம் சார்ந்த கூட்டம் என்பதை நான் இங்கே தெளிவுபடுத்துகிறேன். என் கோவை மாவட்ட சகோதரர்கள், என் திருப்பூர் மாவட்ட சகோதரர்கள், என் ஈரோடு உண்மையிலேயே தமிழகத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி எந்த அணியில் இருக்கிறதோ இந்த அளவில் வை, இதற்கு மேல் வைக்காது, இந்த கலரில் வை, இந்த உயரத்தில் வை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக கோவை என் மாநகரம், தமிழகம் என் மாநகரம், மாநிலம். இந்த தெருவில் போகாது என்று சொல்வது பாரதிய ஜனதா கட்சி பலம் பொருந்திய கட்சியாக மாறி எங்களுக்கு வேண்டிய பிள்ளையாரை எங்கு வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்வோம். எங்களது பிள்ளையாரை எந்த தெருவழியாக கூட எடுத்து அழைத்துவிட முடியாது என்பதை இந்த கூட்டம் நமக்கு உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இனிமேல் எங்கள் கைதான் வாங்கி இருக்கும். மரியாதைக்குரிய நரேந்திர மோடி அவர்கள் பல திட்டம், ஏழைகளுக்கான வங்கி கணக்கு திட்டம், வங்கியில் கேட்டெழுத்தினால் இன்று பாரத தேசம் முழுவதும் 20 கோடி ஏழைகள் வங்கி கணக்கு பார்த்து பணிகள் ஏறுவதற்கு முன்னால் 1000 கோடி என் தமிழக மக்களுக்கு கொடுத்து விட்டு சென்ற தலைவன் வந்திருக்கிறார். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இன்று மாநில அரசு 5000 ரூபாய் வணக்கம்.
हम पैसा देना मानगरम बंददिल महिल जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्षा और यहाँ की जुझारू नेता डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान पोन राधाकृष्णन जी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि इतना बड़ा विशाल जनसागर मेरी नजर जहां तक पहुंचती है कोयम्बटूर हो, ईरोड हो, जयपुर हो, कई वर्षों से मेरा आना जाना रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के समाज जीवन के लोगों के साथ कई बार मिल बैठ करके यहाँ की समस्याओं को जानने का, समझने का प्रयास किया है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री भी नहीं था तब भी मैं यहाँ आया करता था, और आज तमिलनाडु में प्रधानमंत्री बनने के बाद आया तो कई बार मैं, लेकिन सार्वजनिक सभा में बोलने का ये पहला अवसर है। और आपने जो स्वागत किया है, सम्मान किया है, आपने जो प्यार दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आज जब तमिलनाडु आया हूं तो मैं कोयम्बटूर की धरती से देशवासियों को एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि पल भर के लिए 2 साल पुराने उन दिनों को जरा याद कर लीजिए। देश की क्या हालत बन गई थी। तुम्हें टीवी चालू करो, अखबार देखो तो हर दिन एक नया घोटाला, एक नया भ्रष्टाचार, स्कैम हो, स्कैंडल हो, न जाने अनगिनत ऐसी घटनाओं का दौर चल रहा था कि देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। यहाँ के नौजवान आशा खो चुके थे और देश का सामान्य मानवी सोच रहा था कि अब बद से बदतर होता जाएगा, परेशानियां बढ़ती जाएगी, जिंदगी में कुछ करने लायक बचेगा नहीं। ऐसा निराशा का माहौल 2 साल पहले हमें बराबर याद होगा। नहीं है तो जरा पुराने अखबार निकाल करके देख लीजिए, आपको सब चीजें याद आ जाएंगी। साल के भीतर दिल्ली में सरकार बनने के बाद पूरे देश में एक नया विश्वास पैदा हुआ है, नई आशा का संचार हुआ है और समाज के हर तबके के लोगों को, चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, चाहे पढ़ते हो या नौकरी खोजते हो, चाहे कारखाने में काम करते हो, चाहे खेत में काम करते हो, माताएं बहनें हो, घर में बुजुर्ग हो, हर किसी को ये विश्वास पैदा हुआ है
कि अब ये देश आगे बढ़ के ही रहेगा, ये देश नई ऊंचाइयों को पार करके ही रहेगा। கிராமங்களிலே வசிப்பவராக இருக்கட்டும் அல்லது தொழிற்சாலைகளில் பணியாற்றுபவராக இருக்கட்டும், இன்று அனைத்து மக்களுக்கும் இருக்கிறது। कुछ लोग बहुत परेशान, उनको बहुत तकलीफ हो गई है। पहले तो तकलीफ ये हो गई कि ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया, और वो भी पूर्ण बहुमत से सरकार कैसे बना ली। 18 महीने हो गए, लेकिन ये लोकतंत्र की भावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जनता जनार्दन के आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अपने पराजय को स्वीकार करने का मन नहीं बना पा रहे हैं, और इसलिए उनको दिन रात ये सरकार चूमती है, और उनके सपा सिलागारों को भी सरकार चूमती है। சில பேருக்கு गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले, पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले, वंचितों के नाम पर राजनीति करने वाले इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि कोई गरीब मां का बेटा, कोई पिछड़ा, कोई वंचित ये इस देश की बागडोर संभाले। ये बात उनके गले नहीं उतरनी है, क्योंकि उनको तो गरीबों के नाम पर राजनीति करने के सिवाय कुछ करना नहीं। पिछले 1.5 साल में एक भी स्कैंडल नहीं हुआ, एक भी स्कैम नहीं हुआ, कहीं वैसी कोई आरोप नहीं लगे, तो इन लोगों को परेशानी है कि अब करे क्या इस मोदी का। இந்த 1.5 வருஷம் और इसलिए लोकसभा के अंदर तो हम काम कर पाते हैं, हो हल्ले के बीच कर पाते हैं, विरोधों के बीच कर पाते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसे गुस्सा निकाल रहे हैं, ऐसे गुस्सा निकाल रहे हैं, मोदी तुझे दिखा देंगे, तू प्रधानमंत्री बन गया, अब देखते हैं तुम्हारा क्या होता है। ये क्या लोकतंत्र का तरीका है क्या? गरीबों की भलाई के निर्णय राज्यसभा में अटके पड़े हुए हैं। क्या ये नकारात्मकता, ये विरोधवाद, आपकी राजनीति कुछ भी हो, लेकिन कम से कम देश के गरीबों को बांध में मत लो। आपको हैरानी होगी, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तब मैंने कहा था कि इस देश में कानूनों का इतना जंगल खड़ा कर दिया है, कानूनों का इतना जंजाल खड़ा कर दिया है कि सामान्य मानवी, अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी, गांव का आदमी वो बेचारे उस कानूनों में ऐसा फंसा रहता है कि जो जहां पहुंचना है वहां पहुंच भी नहीं पाता है। गरीबों के लिए तकलीफ पैदा करने वाले, मुश्किल पैदा करने वाले, कठिनाइयां पैदा करने वाले 1800 कानून मैंने ऐसे खोज के निकाला कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो कानून मुझे खत्म करने हैं। 700 कानून लोकसभा में पारित हो गया खत्म करने का, लेकिन राज्यसभा में वो खत्म नहीं करने दिया जाता है, राज्यसभा चलने नहीं दी जाती है। गरीब के हक को रोकने का पाप हो रहा है वहां पर। செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஏழை எளிய மக்களுக்காக எதிரான மிகப்பெரிய பாவ செயல்। हमारे यहाँ जो मजदूर काम करता है, जिन फैक्ट्री में उसको बोनस मिलता है, वो बोनस देने के नियम इतना पुराने हैं, उसके मानदंड इतने पुराने हैं कि आज बेचारे गरीब मजदूर को बोनस में कुछ हाथ नहीं लगता है। बच्चों के लिए मिठाई तक खरीद नहीं कर पाता, इतना देता है। हमने तय किया कानून बदलेंगे और मजदूरों को ज्यादा बोनस मिले, उसका इनकम का स्टैंडर्ड भी बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा मजदूरों को इसका फायदा मिले। हमने लोकसभा में कानून पारित किया
लेकिन मजदूरों को बोनस देने वाला ये कानून राज्यसभा में अटक गया। मेरे मजदूरों के साथ ऐसा घोर अन्याय किया गया। कुछ लोगों ने तय किया है, हो सके उतना झूठ बोलो, जितने झूठे आरोप इस सरकार पे लगा सकते हैं लगाओ, बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, जहां जाओ वहां झूठ बोलो, हर बात पर झूठ बोलो। एक ऐसा अभियान चला दिया है देश के अलग अलग लोगों को गुमराह करने का, समाज में बिखराव पैदा करने का, समाज में भाई भाई के बीच में दीवार पैदा करने का एक बहुत ही सोची समझी चाल के तहत देश के टुकड़े टुकड़े करने का पाप कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता लोग देते नहीं है और इसलिए देश तोड़ने पर लगे हुए हैं। किसानों को भड़काने के लिए कोशिश की गई। जब किसानों ने देखा कि एक के बाद एक निर्णय ये सरकार ऐसे कर रही है कि जिसके कारण किसानों का भला होने वाला है। 2-2, 4-4, 5-5 चिट्ठियां आती थी और मैं नया नया प्रधानमंत्री बना था और चिट्ठी किस बात की आती थी? मुख्यमंत्री मांग करते थे कि हमारे राज्य में किसानों को यूरिया चाहिए, भारत सरकार हमें यूरिया देने का प्रबंध करे। और मुख्यमंत्री गुस्सा व्यक्त करते थे भारत सरकार के प्रति। दूसरी तरफ यूरिया आता था तो काले बाजारी में बिकता था, यूरिया होता था तो कई राज्यों में किसानों को कतार लगानी पड़ती थी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता था। ये जब मैं प्रधानमंत्री बना उसके शुरुआत के दिनों में ये सारी पुरानी जो विरासत थी वो हमारे नसीब में आई थी। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये 2015 का वर्ष ऐसा गया, किसी मुख्यमंत्री को भारत सरकार को यूरिया मांगने के लिए चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी। इस देश में कहीं पर भी यूरिया लेने के लिए गए हुए किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस देश के किसी किसान को यूरिया काले बाजारी में खरीदना नहीं पड़ा, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार सबसे ज्यादा यूरिया फर्टिलाइजर का उत्पादन ये 2015 में हुआ। गन्ना किसान, यहाँ पर भी गन्ना के किसान हैं अलग अगल बगल में। चीनी की मिलें गन्ना किसान को पैसे देते नहीं, देश भर में गन्ना किसान के पैसे बकाया है। चीनी का उत्पादन ज्यादा हो गया, दुनिया के बाजार में चीनी को लेने वाला नहीं है, चीनी का दाम गिर गया, फैक्ट्री वाले किसान को पैसे नहीं दे रहे। ये दृश्य कई वर्षों से ये विचक्र चलता रहा है। गन्ना किसान अपने पैसों के लिए बेचारा तरसता रहता है। अरे बोले इतना ही नहीं, इन गन्ना किसानों की मदद करने के लिए भारत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, लेकिन हमने तय किया कि हम चीनी मालिकों को ये पैसे नहीं देंगे, हम जनधन अकाउंट में किसान के खाते में सीधे पैसा जमा करवाएंगे। और आज देश में पहली बार किसानों को डायरेक्ट पैसे देने की हमने व्यवस्था करवाई। इतना ही नहीं, हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया, हमने रॉ शुगर के लिए नए नियम बनाए, हमने इंपोर्ट के ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की। इन सारों का परिणाम यह आया कि आज हम किसान को मदद कर सके इस स्थिति में पहुंच गए। அதேபோல இங்கு விலை கிடைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தோம். அதனால விவசாயிகள், கரும்பு உற்பத்தி செய்த விவசாயிகள் பலன் அடைந்திருக்கிறார்கள். सबसे बड़ा निर्णय किया बायोफ्यूल का, इथेनॉल बनाने का निर्णय किया और वो पेट्रोल के अंदर डीजल में मिक्स करने की दिशा में आगे बढ़े और आज शुगर फैक्ट्रियों में से इथेनॉल बनता है। उसके कारण जो किसान बेचारा शुगर केन पैदा करता था, उसको जो कठिनाई होती थी, उसको मुक्ति मिल जाए, ऐसा एक लंबे अरसे को फायदा होने वाला इस सरकार ने निर्णय किया। इस देश में
पल्सेस, दाल वगैरह उसकी खेती किसान कम कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा गेहूं और चावल तक जाता था क्योंकि एमएसपी में उसको पैसा मिलना तय होता था। देश को दाल की जरूरत थी, पल्सेस की जरूरत थी। गरीब आदमी को खाने के लिए दाल चाहिए। अगर उसके शरीर में प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए दाल खाना जरूरी है। सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया, गरीबों के लिए किया, किसानों के लिए किया कि आप पल्सेस में भी एमएसपी रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी। इतना ही नहीं, उसको परचेज करने का काम सरकार ने किया और इसके कारण पहली बार देश का किसान अब पल्सेस की खेती में आगे बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में देश को जिस प्रकार के पल्सेस की जरूरत है, उस पल्सेस की आप रिक्वायरमेंट मेरे देश का किसान पूरी करने के लिए तैयारी कर रहा है। पहले कोई प्राकृतिक आपदा होती थी तो किसान को मुआवजा मिलने में दिक्कत होती थी। नियम इतने पुराने थे कि किसान के हाथ कुछ लगता नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद प्राकृतिक आपदा में किसानों को मदद करने के सारे नियम बदला दिए और पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने दिल्ली में बैठी हुई सरकार की तारीफ की कि प्राकृतिक संपदा में अब टिकने की ताकत हमको सरकार ने दी है। अब मुसीबतों से लड़ने के लिए हम तैयार हो गए हैं। हमारे देश का किसान क्रॉप इंश्योरेंस में कभी जुड़ना नहीं चाहता था। इतनी सरकारें आई, इतने क्रॉप इंश्योरेंस की योजनाएं आई, 20% से ज्यादा देश का किसान क्रॉप इंश्योरेंस नहीं करवाता था क्योंकि इंश्योरेंस के नियमों में गड़बड़े थी। किसान को पैसा बहुत देना पड़ता था। हमने इस बार इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि किसान सिर्फ 2%, 1.5% में अपना इंश्योरेंस ले सकता है। और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी बात सुनते हैं, किसानों की मदद करने के लिए, किसानों को इंश्योरेंस लेने के लिए प्रेरित कीजिए। उसकी जिंदगी में कभी कोई संकट आएगा तो सरकार उसके साथ पूरी तरह खड़ी रहेगी। ये बोले भैया 60 साल में जो किसानों को नहीं मिला था वो 16 महीने के भीतर भीतर किसानों को मिल गया। और उसके कारण कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। उनको लग रहा है ये मोदी का क्या करे, ये तो किसानों के सेवा में लग गया, इसके कारण उनको नींद नहीं आती। 60 ஆண்டுகளாக விவசாயிகள் अब उन्होंने पिछले दिनों हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का हमने गौरव गान किया। पहली बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के हमने सिक्के निकाले, पोस्टल स्टैम्प निकाला। पार्लियामेंट में 2 दिन के लिए संविधान और बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती पर डिबेट की। लंदन के बाबा साहब आम्बेडकर जहां पढ़ते थे वो मकान सरकार ने लिया, स्मारक बनाया। मुंबई में हिंदू मिल जहां बाबा साहब ने सांस छोड़ी थी, अंतिम क्रिया हुई थी, उस चैत्य भूमि को बनाने के लिए हिंदू मिल हमने बाबा साहब आम्बेडकर के स्मृति में दे दी। हमने दिल्ली में बाबा साहब आम्बेडकर के लिए 2 भव्य स्मारक बनाने की दिशा में कदम उठाए। बाबा साहब आम्बेडकर जिनको पूरी तरह भुला दिया गया था, बाबा साहब आम्बेडकर जिनके विचारों को दबोच दिया गया था, उस बाबा साहब आम्बेडकर के लिए एक के बाद एक हम जब काम करने लगे, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों के लिए काम करने लगे तो ये भड़क गए। उनको लगता था ये तो हमारा ठेका था, ये तो हमारे वोट है। हम मोदी बाबा साहब आम्बेडकर की पूजा करने लग गया है। मोदी बाबा साहब आम्बेडकर के 125 साल मना रहा है। मोदी बाबा साहब आम्बेडकर के सिक्के निकाल रहा है। मोदी बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर पार्लियामेंट चला रहा है, सब चर्चाएं कर रहा है। अब मोदी से दलितों को जाने से रोकना पड़ेगा, दलितों को पीछे लेना पड़ेगा। और इसलिए दलितों के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है।
लोगों के आंख में धूल झोंकी जा रही है और मेरे दलित पीड़ित शोषित वंचित भाइयों को भड़काने का पाप किया जा रहा है। अरे बोलो बाबा, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों उनको भड़काने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। ये मोदी रिजर्वेशन खत्म कर देने वाला है। ऐसे झूठ फैलाने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हमारे तत्व ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। शरीर कितना मजबूत क्यों न हो, ऊंचाई अच्छी हो, वजन अच्छा हो, जेब में पैसे भरपूर हो, सब कुछ हो, खाना बढ़िया खाता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर एक हाथ दुर्बल हो तो शरीर को कभी स्वस्थ नहीं कहा जाता। एक आंख अगर दुर्बल हो तो शरीर को भी स्वस्थ नहीं कहा जाता। संपूर्ण भारत माता तब स्वस्थ होती है जब मेरे 125 करोड़ देशवासी स्वस्थ होते हैं, मेरे दलित ताकतवर होते हैं, मेरे पीड़ित ताकतवर होते हैं, मेरे वंचित ताकतवर होते हैं। समाज का दबा हुआ वर्ग 60 साल से जो विकास की प्रतीक्षा कर रहा है, उसको अगर अवसर नहीं मिलेगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए हमारा प्राथमिकता है गरीबों का भला, दलितों का भला, वंचितों का भला, शोषितों का भला। इसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। आरक्षण के नाम पर झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए समाज को बहका रहे हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लीजिए। जब तक बाबा साहब आम्बेडकर का नाम रहेगा, इस देश में कोई किसी की अनामत नहीं हटा सकता, कोई रिजर्वेशन नहीं हटा सकता। बाबा साहब आम्बेडकर की अमरता से जुड़ा हुआ है और इस पर कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। दलित भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ना है तो देश में एकता चाहिए, सद्भावना चाहिए, शांति चाहिए। यही राजमार्ग है जो विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए इसकी पहली शर्त होता है। आज दुनिया के कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, IMF का रिपोर्ट हो, क्रेडिट एजेंसीज का रिपोर्ट हो, सारी दुनिया एक स्वर से कह रही है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है उसमें अगर कोई तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है, जिसका GDP तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। मेरे प्यारों, हिंदुस्तान। इधर बोला, मेरे नौजवान मित्रों, इस देश का सौभाग्य है कि आज हमारे देश में 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हमारा देश जवान है, हमारे जवानों के सपने भी जवान हैं और इसलिए देश की दौड़ने की ताकत भी जवानों जैसी है। मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। मेक इन इंडिया का अभियान इसलिए चलाया है ताकि हिंदुस्तान में पूंजी आए, कारखाने लगे और मेरे नौजवानों को रोजगार मिले। और उस दिशा में बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी होती है कि पिछले दिनों मेरे पास जानकारी आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 39% इजाफा हुआ, 39% इंक्रीज हुआ है। देश में जब भी इकोनॉमी की बात होती है तो दो ही विषयों की चर्चा होती है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। मैंने उसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। यह देश प्राइवेट सेक्टर अपना काम करेंगे, पब्लिक सेक्टर अपना काम करेंगे। देश की ताकत तो पर्सनल सेक्टर में है और मेरी सरकार पर्सनल सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है। एक एक व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है। जॉब सीकर नहीं,
जॉब क्रिएटर बने, ऐसे नौजवान मैं करना चाहता हूं तैयार। और इसलिए सरकार ने मुद्रा योजना चालू की है। पहले हमने जनधन अकाउंट खोले, अब मुद्रा योजना चालू की है। उस मुद्रा योजना के तहत सामान्य मानवी, सब्जी बेचने वाला हो, कपड़ों की इस्त्री करने वाला धोबी हो, बाल काटने वाला नाई हो, अखबार बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, पकोड़े बेचने वाला हो, सामान्य मानवी, उनको पैसे चाहिए, पैसे मिलते नहीं है, साहूकार ब्याज लेता है और उनकी जिंदगी में कभी अच्छे दिन नहीं आते हैं। भाइयों बहनों, मुद्रा योजना के तहत हमने ऐसे गरीबों को किसी भी प्रकार की गारंटी के बिना रुपये देना शुरू कर दिया और उसका परिणाम आया 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पैसा मिला। 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा मिला और वे अपने पैरों पर खड़े हुए खुद को ही तो पेट भरते हैं और भी 2-3 लोगों को काम पे लगा के उनका भी पेट भरना शुरू किया है। आगे इतना ही नहीं, देश के नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए अलग स्किल डिपार्टमेंट बनाया, स्किल डेवलपमेंट के लिए अभियान चलाया। दुनिया के जिन देशों में स्किल डेवलपमेंट में ताकत है उनको भी जोड़ने का प्रयास किया। देश के करोड़ों नौजवानों के हाथ में स्किल देना, हुनर देना, उसका एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है ताकि कभी इस नौजवान को रोजगार के लिए तड़पना न पड़े। அதே போல இளைஞர்களுக்கு उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में अगर पहचान नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, कोई जानकार नहीं है, कोई दलाल नहीं है, कोई करप्शन के पैसे नहीं है, तो नौजवान इंटरव्यू में फेल हो जाते थे, उनको नौकरी नहीं मिलती थी। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय किया, 3रे और 4थे वर्ग के कर्मचारियों की कोई इंटरव्यू नहीं होगा, उसके एग्जाम के मेरिट के आधार पर उसको नौकरी दे दी जाएगी। भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया, भ्रष्टाचार भी गया और हमारे नौजवानों को किसी के पीछे जो लगना पड़ता था और अपने रुपये जाते थे, सम्मान जाता था, उनको बचाने का एक बहुत बड़ा काम इस निर्णय से हमने कर दिया। हमने एक अभियान चलाया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। हमारे देश के नौजवानों के पास बुद्धि है, क्षमता है, वे अपने पैरों पर नई चीज करने को तैयार है और इन दिनों भारत में वो ताकत है, वो दुनिया का स्टार्टअप कैपिटल बन सकता है। हमारे नौजवान हिम्मत के साथ नए प्रयोग करने के लिए तैयार है, इनोवेशन करने के लिए तैयार है, नए तरीके ढूंढने के लिए तैयार है और इन दिनों जीवन के हर क्षेत्र में इनोवेशन करके नौजवान नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और बड़े सपने लेकर के सही दिशा में मजबूत कदम रख रहे हैं। அதே போல दोस्तों, भारत की जो युवा शक्ति है उसके लिए नए अवसर पैदा करना, उनकी शक्ति को लेकर के देश को आगे बढ़ाना, चाहे देश का किसान हो, चाहे का दलित पीड़ित शोषित वंचित समाज हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमारी खेती हो, हमारा पशुधन हो, हमारे नौजवान हो, सबको साथ लेकर के एक नई ताकत के साथ भारत आगे बढ़ना चाहता है, आपके सपनों को पूरा करना चाहता है और हमारी तरफ से मेहनत करने में कोई कमी नहीं रहती, दिन रात लगे रहते हैं। ये देश को आगे ले जाने के लिए मुझे आपका साथ और सहकार चाहिए। मैंने तो बहुत थोड़ी चीजें बताई हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल में एक दिन ऐसा नहीं गया कि कोई न कोई अच्छा काम न किया हो, कोई अच्छा इनिशिएटिव न लिया हो। सारी बातें मैं बताऊं तो मुझे महीनों तक तमिलनाडु में रह करके बताने के लिए बैठना पड़ेगा। इतने सारे काम करने का हमें सौभाग्य मिला है। मैं फिर एक बार आपके समर्थन के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर एक बार इस विराट जनसभा के लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। वणक्कम।
இந்த மிக மகத்தான ஜனசமுதிரத்திற்காக என்னுடைய கோடி கோடி நன்றிகளை मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए भारत माता की ताकत इतनी चाहिए पूरे तमिलनाडु में सुनाई दे, बगल में केरल में भी सुनाई दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। நன்றிகளை ஆற்றுவதற்காக பொதுச் செயலாளர் திரு செல்வகுமார்